अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे एंड और फर्स्ट टॉपिक इस सेंटेंस में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी और मेरा मकसद है कि हर किसी को इंग्लिश ग्रामर आ जाए ताकि कोई टेस्ट हो या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो, कुछ भी हो, ये आपको हेल्प करे। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है इंग्लिश ग्रामर में दैट इज़ अ सेंटेंस। तो हम इसको आज समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। It is a group of words which give complete meaning, right? And it also expresses the idea by giving a statement, right? If I say I am learning English, I am not learning English, it is a statement. And question, are you getting me, are you not getting me, it is a question and it is also a sentence. Or exclaim means a sudden feeling, right? If I say, oh, you are understanding me, so that is the exclaiming. So sentence is a group of words which gives complete meaning, कि हमें मज़ीद कोई और वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती उसमें ऐड करने के लिए कि हमें उसका पूरा मीनिंग समझ आए। तो सेंटेंस इज इटसेल्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव कंप्लीट मीनिंग। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस? बाय स्ट्रक्चर वी मीन्स कि सेंटेंस किस तरह से बनता है। हाउ डू वी मेक अ सेंटेंस, इसमें किस टाइप के ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज़ subject plus verb plus object, which means we have to put first subject, then verb, then object. Like I read books. I is the subject, read is the verb and book is the object. Similarly, he plays cricket. They eat mangoes. Its sequence is subject verb object, subject verb and object. अब हम ये समझेंगे कि एक्चुअली सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होगा। स्ट्रक्चर तो सेंटेंस का हमेशा यही रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से अगर ये तीन चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो एक सेंटेंस बन जाएगा। फिर जैसे जैसे हम एडवांस इंग्लिश की तरफ जाते जाएंगे तो हम मज़ीद इसके स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, किस तरह का सेंटेंस हो सकता है। बट सिंपल सेंटेंस के लिए ये तीन चीज़ें मस्ट आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट पे आते हैं। Subject is actually the actor or doer of the sentence. Subject is actor or doer of the subject. Subject is a that actor which do or which does anything in the sentence. And subject is anything, a person or thing doing the action is the subject. Who or what performs an action is the subject, right? Keep in your mind that subject is a person or thing that do something in the sentence, or that is doing the action, or who or what performs the action in the sentence is known as the subject. Like if I say that I read books, then who is reading the book in this subject, in this sentence? I. So I is the subject. I is performing the action. I is doing the action, right? So I is the subject. He plays cricket. So who is playing cricket in this sentence? He. So he is the subject. Similarly, they eat mangoes. So who are eating mangoes in this subject, in this sentence? They. So they is the subject. So subject is the doer who is doing something in the sentence, or who is acting something in the sentence, who is doing action in the sentence is known as the subject. So we can say that subject is the actor or doer of the sentence. Now we move towards the object. Object क्या होता है? Object is actually the whoever or whatever receives that action. Subject is the one who is doing the action, and object is the one who receives that action on which the action is performed, or whoever or whatever receives that action. Or we can say that element of the sentence that is acted on, जिस पर act किया जाता है, right? For example, I read books. So subject क्या कर रहा है इसमें? Subject is I read books. So action किस पे हो रहा है, किसको पढ़ा जा रहा है इस सेंटेंस में? That is book. बुक को पढ़ रहे हैं तो बुक्स इज द ऑब्जेक्ट. सिमिलरली इन नेक्स्ट सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट. सो व्हाट इज ही प्लेइंग इन दिस सेंटेंस? ही इज प्लेइंग क्रिकेट. ही प्लेज क्रिकेट. क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट बिकॉज एक्शन इज एक्टिंग ऑन द क्रिकेट. Similarly, in next sentence, they eat mangoes. What they eat in this sentence? Mango. Action is performing on this.
एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट इज एक्टेड ऑन, किस चीज़ को खाया जा रहा है, मैंगोज को. सो मैंगोज आर द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सो ऑब्जेक्ट इज whoever or whatever, whoever or whatever receives that action. Element of the sentence that is acted on is the object. Now last but not the least, but the most important part of this sentence is the verb. वर्ब के बगैर हम कोई भी सेंटेंस बना ही नहीं सकते. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट. सो वर्ब क्या है, वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड और शोज एक्शन. एक्चुअली जो एक्शन हो रहा होता है किसी भी सेंटेंस में, जो एक्शन शो हो रहा होता है, दैट इज़ द वर्ब. इट इज़ अ डूइंग वर्ब और इट शोज action. For example, in first sentence, I read books. So read is the action, read is the doing word. It shows the action कि इस sentence में हो क्या रहा है, what is actually being act. It is known as the verb. Read is the verb. And in second sentence, he plays cricket. Play is the verb. And in third sentence, they eat mango. So eat is the verb. It shows action. It is a doing verb. Verb क्या है? It is a doing word that shows an action. ये कोई एक्शन भी शो कर सकता है. इट ऑल्सो शोज एन इवेंट और अ स्टेट, जो भी है ये करता है. और वर्ब इन्फॉर्म्स अबाउट द एक्शन, शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. और ये एक्सप्रेस करता है दैट व्हाट एक्शन इज. इन दिस फर्स्ट सेंटेंस व्हाट एक्शन इज रीड किया जा रहा है इस सेंटेंस में. एंड सेकंड में प्ले इज द एक्शन, प्लेइंग. एंड थर्ड सेंटेंस ईट इज द एक्शन. सो वर्ब शोज एक्शन, ये एक्शन को शो करता है. अच्छा, verb, because as I told you that it is the most important part, or it is most important word of the sentence. Without it we cannot form a sentence. Either it is a simple, complex word, जो भी है, compound है, complex है, simple है, whatever, लेकिन verb के बगैर हम sentence को नहीं बना सकते. It is the most important. तो थोड़ा सा verb पे, वैसे तो हम advanced English की तरफ जब जाएंगे तो verb की बहुत सारी types के बारे में डिस्कस करेंगे. बट अभी थोड़ी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें बेसिक ग्रामर के लिए चाहिए वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं. सो वर्ब में पर्सन्स होते हैं. जैसे आपने पर्सनल प्रोनाउन वगैरह में पढ़ा होगा. ये मैं आपको आगे नेक्स्ट अपनी वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी कि किस तरह से प्रोनाउन के पर्सन्स होते हैं. इसी तरह से पर्सन ऑफ द वर्ब्स भी होते हैं. अब बाय पर्सन ऑफ वर्ब व्हाट डू आई मीन? बाय पर्सन ऑफ वर्ब आई डू मीन दैट पर्सन ऑफ द वर्ब्स आइडेंटिफाई अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट and its verb. Subject and its verb. ये आइडेंटिफाई करते हैं इसके रिलेशनशिप को, किसके दरमियान? सब्जेक्ट एंड वर्ब के दरमियान. आई विल शो यू हाउ. और ये शो करते हैं कि वेदर द सब्जेक्ट इज स्पीकिंग अबाउट इटसेल्फ. जैसे मैं अभी अपने बारे में बात करूँ कि दैट आई एम टीचिंग इन इंग्लिश ग्रामर. आई मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. आई एम स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ. सो वेदर द सब्जेक्ट इज स्पीकिंग अबाउट इटसेल्फ मीन्स कि फर्स्ट पर्सन होगा जब हम अपने बारे में बात कर रहे होंगे. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है. अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली दैट आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, दैट इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट आई एम यूजिंग द आई. इफ I have a sister with me and I say that we are teaching English, then it is the first person plural. ये first person plural होगा. first person singular is the I, first person plural is the we. first person is word. by first person I do mean that subject is speaking about itself, वो अपने बारे में बात कर रहा होता है. second is being spoken to. being spoken to means subject is being spoken to, that I am speaking to you. मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो being spoken to, जिस भी बंदे के से आप मुखातिब होते हैं या बात कर रहे होते हैं, that is the second person. so you, whom I am teaching the English, you. so you is the second person. and second person singular भी you है and second person plural भी you ही होगा. first person singular was the I and first person plural is the we. Similarly third person कौन से होंगे? being speaking about. अगर मैं if I am present here I am speaking about myself, then it's the first person. and if I am being if I am speaking to you, that is the second person is being spoken to. जिससे spoken to होते हैं हम, that is the second person you. and if the
person is not present here and we are speaking about them or he or she or it, then that is the third person. Third person means that a subject is being spoken about, that is he, she or it. He, she, it, they. These are the third persons. And like first person and second person, third person has also its singular and plural. First person singular is the he, she and it, and third person plural is the they. Third person plural होंगे they होंगे, right? So these were the three persons of the verb. अब मैं ये चाहती हूँ कि हम एक सेंटेंस लें कोई भी और उसको इन सारे persons में लिखें कि उस पर क्या डिफरेंस आता है एक्चुअली, राइट? सो फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से आई रीड. ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने यूज़ किया आई रीड, एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं वी रीड. सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं यू रीड. सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होगा, यू रीड एंड यू रीड. थर्ड पर्सन के साथ देखते हैं कि कोई चेंज आ रहा है वर्ब में कि नहीं आ रहा. यू नो दैट इन आई रीड, आई इज़ द सब्जेक्ट एंड रीड इज़ द वर्ब, राइट? तो हम देखते हैं कि हमने क्या कहा कि बाय पर्सन ऑफ द वर्ब मीन्स दैट दे शो रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का हम रिलेशनशिप देखते हैं लिख के कि किस पर्सन से वर्ब पे क्या डिफरेंस आ रहा है. So first person singular I read, first person plural we read, second person singular and plural you read, and third person singular he reads. Second person plural singular she reads. It reads तो हो नहीं सकता, it के साथ कुछ भी हम और वर्ड यूज़ कर सकते हैं. That it shows, right? और दे थर्ड पर्सन प्लूरल दे रीड. अब अगर हम वर्ब को देखें तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सब के साथ वर्ब पे कोई भी डिफरेंस नहीं आया. सिर्फ अगर डिफरेंस आया है तो वो किसके साथ आया है? अगर डिफरेंस शो हुआ है तो ओनली चेंजेस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर. There is only change in the third person singular. What is that change? It adds s or es to the verb. He जब यूज़ होगा तो reads हो जाएगा, she यूज़ होगा तो reads हो जाएगा, it यूज़ होगा तो shows हो जाएगा. So all of three, he, she and it are the third person singular. तो third person singular में सिर्फ change आया है verb के साथ, इसके साथ s add हुआ है, it adds s. बाकी किसी भी पर्सन में चेंज नहीं आया. और ये चेंज हम जब टेंसेस वगैरह बना रहे होंगे तो उसमें भी मज़ीद इस पर बात करेंगे. सो ये पर्सनस की एग्जांपल्स थे कि कैसे हम फर्स्ट पर्सन के साथ सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, सेकंड पर्सन के साथ किस तरह से हम सब्जेक्ट एंड वर्ब का रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, एंड थर्ड पर्सन के साथ कैसे हम सब्जेक्ट एंड वर्ब का रिलेशनशिप शो करते हैं, राइट? सिमिलरली आप सब ने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म कहते हैं. अब इन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या होती हैं. सो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की उसको हम वी आई से डिनोट करेंगे. नेक्स्ट अपने सेंटेंसेस में टेंसेस जब हम पढ़ेंगे उसमें हम V1 से शो करेंगे वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को, सेकंड फॉर्म को V2 से शो करेंगे एंड थर्ड फॉर्म को V3 से शो करेंगे, राइट? अब जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म को हम V1 कहते हैं, या अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम टू लगा लेते हैं तो उसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, राइट? अगर हम एग्जांपल लें ईट की, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, ईटन, एंड ईटन इज़ द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. सो अगर ईट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम टू लगा लेते हैं तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ द इन्फिनेटिव. ये आपने याद रखना है, टू ईट इज़ द इन्फिनेटिव. अच्छा, फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड एक और फॉर्म वैसे यूजुअली बुक्स में तो यूज़ नहीं की जाती, लेकिन बोला जाता है कि रूट फॉर्म होती है, रूट फॉर्म या बेस फॉर्म. रूट फॉर्म या बेस फॉर्म एक्चुअली वो फॉर्म होती है जो किसी भी चीज़ से बनी हुई नहीं होती, एक्सट्रैक्ट नहीं हुई होती. इट इज़ नॉट अ कंजुगेट ऑफ एनीथिंग. ये किसी से भी बनी हुई नहीं होती, इसके साथ कोई सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस ऐड नहीं हुए होते. जैसे ईट, अगर मैं सिंपल बात करूँ, ईट इज़ द सिंपल बेस फॉर्म,
बेस फॉर्म, इसके साथ कोई एस ई एस ई एन कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इट इज़ द बेस फॉर्म। इसको हम बेस फॉर्म या रूट फॉर्म बी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड फॉर्म जो है उसको V2 से मैंने कहा डिनोट करेंगे, और उसको सेकंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, सिंपल पास्ट फॉर्म। एंड थर्ड फॉर्म V3, थर्ड फॉर्म को हम V3 से डिनोट करेंगे, और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म इज़ द पास्ट पार्टिसिपल, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि हम रूट फॉर्म को लेके या फर्स्ट फॉर्म को लेके उसके साथ ING को ऐड कर लेते हैं। जैसे ईटिंग बन गया, सो ईटिंग इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल? इट एड्स ING विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटिंग, राइट। इसको अगर हमने यूज़ करना हो तो V4 से डिनोट कर लेंगे। रूट फॉर्म को आप V1 के साथ ही ऐड कर लें कि रूट फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल बेस फॉर्म होती है, ईट। क्योंकि वैसे तो मैंने आपको कहा कि जब थर्ड सिंगुलर पर्सन यूज़ होंगे इस फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो एस या ई एस का एडिशन होगा, इसके साथ एस या ई एस एड होगा जब हम इसको ईट को थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे। लेकिन जब तक इसके साथ एस या ई एस एड नहीं होगा, ये रूट फॉर्म रहेगी। जब तक इसके साथ कुछ भी सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस एड नहीं होंगे तब तक ये रूट फॉर्म रहेगी। लेकिन जब इसके साथ थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ एस या ई एस का एडिशन हो गया, तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी लेकिन रूट फॉर्म नहीं रहेगी। और अगर इसके साथ ING का एडिशन हो जाता है तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, राइट। अब नेक्स्ट हम जाते हैं वर्ब की दो बिल्कुल सिंपल फॉर्म्स हैं जिसमें मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं नेक्स्ट में आपको ये भी बताती हूँ और इसके साथ साथ सेंटेंस की टाइप्स बताती हूँ।